ملزمان کے قبضے سے 14,75,000 روپے نقدی اور جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان سادہ لوگ خواتین کو یرغمال بنا کر بالیاں نوچتے تھے، جبکہ گینگ کے ارکان لیڈی ڈاکٹر سے طلائی زیورات چھیننے میں ملوث نکلے۔ ادھر ہلانی میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوش و جذبے سے تیاریاں عروج پر ہیں۔ گلی محلوں، بازاروں اور مسجدوں کو خوب سجایا گیا ہے اور خصوصی سٹال بھی لگائے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہلانی سے غلام مصطفیٰ مغل سے۔ جی غلام، بتائیے گا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسے تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ بالکل دیگر شہروں کی طرح حالانہ بھی کسی سے کم نہیں۔ 12 ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی یہاں کی مسجدیں، گلیاں، بازار اور دکانیں سجا دی گئی ہیں اور خصوصی اسٹال بھی لگائے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ آج کے رسول موجود ہیں، آئیے جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جیسے عید مناتے ہیں، عید آنے سے پہلے ہی جیسے بقرہ عید ہو گئی اور جو ہے عید الفطر ہو گئی، اس سے بھی زیادہ ہم 12 ربیع الاول پہ بہت زیادہ جو ہے نا اس سے بھی زیادہ ہم عید مناتے ہیں۔ الحمدللہ بہت خوشی ہے ہم سے، بہت الحمدللہ اپنی جان مال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم اپنی فدا کر دیں گے۔ ربیع الاول کی چاند نظر آنے سے پہلے سارا سال ہمیں انتظار رہتا ہے کہ جب یہ ماہ آئے اور خوشی کی لہریں چھا جائیں، جیسا کہ ہم نے اسٹالیں بھی لگائی تھی اور اب بھی لگی پڑی ہیں۔ یہ ہمارے بال بال میں سونے حضور کے آمد کی خوشی ہے۔ یہاں کے شہریوں، چھوٹے بڑوں، بچوں اور سب نے 12 ربیع الاول کی بالکل بہترین تیاری کی ہے اور اس دن کا عید کی طرح انتظار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ غلام مصطفیٰ مغل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ حجرہ شاہ مقیم کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والا مین قصور روڈ سیوریج سسٹم بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ قصور روڈ پر بننے والا سیوریج سسٹم آئے روز بڑے حادثات کا سبب بن رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی بار انتظامیہ کی توجہ اس طرف دلوائی گئی مگر انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز ہزاروں من گندم سے بھرا ٹرالا حادثے کا شکار ہوا، جس میں سینکڑوں من گندم سیوریج کے گندے پانی میں گر کر خراب ہو گئی۔ آپ کو بتائیں کہ شانگلہ مارتونگ آندھے قتل کا معمہ حل، پولیس نے جدید طریقے کے ذریعے ملزم کو اعلی قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ دوران انویسٹیگیشن ملزم کا کہنا تھا کہ فائرنگ کر کے مقتول کا قتل کیا۔ مزید تفتیش کے بعد ملزم کے گھر سے پسٹل بھی برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے تفتیش مکمل کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ میاں چنو، مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ جعلی حکومت کو عوام مسترد کر چکی ہے۔ نون لیگی ایم پی اے رانا بابر حسین کی کانفرنس، کہا میں کل بھی مسلم لیگ نون کا سپاہی تھا اور آج بھی ہوں۔ نون لیگی ایم پی اے میاں چنو رانا بابر حسین نے اپنی رہائش گاہ پر اہم پریس کانفرنس میں کہا کہ میرا مرنا جینا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ کچھ لوگ میرے خلاف پارٹی تبدیلی کی جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں، ان کو وقت کے ساتھ ساتھ شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ میں کل بھی مسلم لیگ کا سپاہی تھا اور آج بھی ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ قریبی ساتھی کی پارٹی چھوڑ جانے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ جو پارٹی چھوڑ کر گیا وہ ہمارا تھا ہی نہیں۔ حاصل پور میں محکمہ ٹیلی کمیونیکیشن کی نااہلی، کام کے لیے آیا عملہ کھدائی کا سارا ملبہ ادھر ہی پھینک گیا۔ شہر میں جگہ جگہ گندگی کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے لگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حاصل پور سے ہمارے نمائندے موجی، بتائیے گا تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، میں اس وقت مین بہاولپور چوک پر موجود ہوں۔ یہاں پر گزشتہ کئی روز سے یہ خطرہ شہریوں کو منہ جا رہا ہے۔ یہ ایس ڈی او جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے ان کی نااہلی کا منہ اسکولوں نے یہاں پر کھدائی کی، اس کے بعد بارہا ان کو یہ بات باور کروائی گئی تو یہ تاحال خطرہ یہاں سے نہیں اٹھایا گیا۔ یہ شہر کا دل ہے، بہاولپور چوک میں اس وقت موجود ہوں اور یہ لاری اڈا جنکشن ہے۔ یہاں سے کراچی، لاہور، فیصل آباد ہمہ وقت جو ہے گاڑی یہاں پر تیار ہوتی ہیں۔ شہریوں کی آمد و رفت میں یہاں پر 18 سے 20 گریڈ کا جو آکسیجن ہے ان کا یہاں سے گزر ہوتا ہے، لیکن ایس ڈی او جو ٹیلی کمیونیکیشن انور مقبول صاحب ہیں وہ جو تاحال اس کو اٹھانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز کی ان کے نوٹس میں دیا گیا کہ تاحال جو ہے سانگلہ ہل میں آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ لوگ اپنے گھروں اور گلیوں کو برقی قمقموں سے سجانے میں مصروف ہیں۔ مزید تفصیلات ملک کاشف کی اس رپورٹ میں۔ سونا آیا آیا آیا، سونا آیا، سونا آیا آیا۔
محسن इंसानियत की वलादत की खुशी मनाना हर मुसलमान के लिए एक सआदत है। सांगला हिल में आशिकाने रसूल का जोश खरोश अरूज पर है। मसाजिद और घरों को सबज झंडों और बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। बच्चा हो या जवान, हर एक अपने घर और गलियां सजाने में सबकत ले जाना चाहता है। शहर भर में दावत इस्लामी और मुख्तलिफ इस्लामी तंजीमों की जानब से महफिल नात और रैलियों का इनकाद किया जा रहा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत की धूमें मची हुई हैं। हर साल की तरह इस साल भी उसी मजहबी जोशो कीदत से मनाया जा रहा है। बल्कि जैसा कि अल्लाह ताला का कुरान पाक में वादा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। अमीर हो या गरीब, हर कोई ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में अपना हिस्सा डालने में मसरूफ है। जबकि पुलिस की जानब से रैलियों और जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मलक काशिफ, टीवी टुडे, सांगला। मुल्क भर की तरह जतोई में भी जतोई बार की जानिब से फ्रांस में गुस्ताखाना खाके बनाने वालों के खिलाफ एहतजाज किया गया है, जिसमें तमाम वकला बरादरी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन खान से। जी मोहम्मद हुसैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में भी फ्रांस की जानिब से जो नबी आखिर ज़मा की शाम में निशान में गुस्ताखाना खाके शाये किए गए, तमाम तर वकला बिरादरी सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से सदर बार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे जानना चाहेंगे। जी सर, आप क्या बताएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की गई है उस हवाले से, और आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हमारी जो हड़ताल है वो फ्रांस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अगेंस्ट जो गुस्ताखाना खाके इशू किए गए हैं, उस सिलसिले में पंजाब बार की कॉल पर जो है ना ये की गई है। आज पूरे पंजाब में पंजाब बार की कॉल पर तमाम वकला साहबान मुकम्मल तौर पर अदालतों का कम्प्लीटली बाइकाट किया है। और इसी कॉल की उसमें जतोई बार एसोसिएशन ने जतोई बार से कोर्ट से लेके ग्रेट चौक जतोई तक एहतजाजी रैली निकाली है। और इस सिलसिले में हम जुमला बार एसोसिएशन जतोई के वकला हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो भी प्रोटेस्ट किया गया है वो काफ़ी ना है। जी, जैसा कि आपने सदर बार की ज़ुबानी सुना, इनका कहना है कि फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से मुल्क बदर किया जाए और हमारा सफ़ीर जो फ्रांस में रहता है उसको एहतजाजन पाकिस्तान में बुलाया जाए। और इसके साथ साथ इन्होंने हुकूमत से वक्त मुतालबा किया है कि फ्रांस की तमाम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोट राधा किशन से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान रेलवे ने कोट राधा किशन में रेलवे अराजी पर नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ गुज़श्ता दिनों ग्रैंड ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बावजूद हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है। कब्जा माफिया ने रेलवे अराजी पर रातों रात दोबारा कब्जा कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शबाब से। बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। चंद दिन पहले रेलवे हुकाम और रेलवे पुलिस ने मिलकर नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया, मगर वो ग्रैंड ऑपरेशन सिर्फ एक ड्रामा निकला। ऑपरेशन के फौरी बाद अगले ही दिन नाजायज़ तजावुज़ात फिर दोबारा अपनी जगहों पर मौजूद थी। रेलवे रोड पर सब्ज़ी मंडी के सामने सब्ज़ी फरोशों ने रेडियाँ फिर दोबारा वहीं पर लगा ली। इसके अलावा दूसरी रेलवे लाइन के साथ साथ भैंसों के बाड़े बने हुए हैं, रेलवे नाजायज़ टैक्सी स्टैंड बना हुआ है और इसके अलावा पान शॉप्स भी जूं की तूं चल रही हैं, जिसकी वजह से अमूमन ट्रैफिक जाम रहती है। रेलवे पुलिस के मुताबिक हम इनको दोबारा फिर वाक़ज़ा करवाएंगे, लेकिन ये ऑपरेशन हमेशा की तरह ड्रामा ही निकलता है। जी। के सैलाब के बाद से खस्ता हाली का शिकार है सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस रोड का मुरम्मती काम अब तक ना हो सका। आए दिन हादसात मामूल बन गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हादी बख्श से। जी बताइएगा हादी। जी बिल्कुल, आज इस वक्त मौजूद हैं तंगवानी और ठोल मेन रोड पर। कई अरसा दराज से जो ये रोड है वो खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ के इलाके मकीनों को सख्त मुश्किलात दरपेश। मैं आपको बताया चलूँ कि 2010 सैलाब के बाद और 2012 के बारिशों के बाद ये रोड खस्ता हाली का शिकार हो चुका है और इस रोड का ताहाल रिपेयर का काम ना हो सका है। हमारे साथ एक इलाके मकीन मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इसी हवाले से मजीद उनका क्या कहना। सर देखें, 2010 में जो सैलाब आया था उसके बाद 10 साल गुजर गए। ये जो तंगवानी और ठुल लिंक रोड है जाँ बहक हो गए। बाकी जख्मी बच्चों को TH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
हुकूमत पंजाब के विजन और आईजी पंजाब के खुसूसी हिदायत की रोशनी में डीपीओ खानेवाल मोहम्मद अली वसीम ने एसडीपीओ ऑफिस जहानिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों के मसाइल और आने वाले साइलिन की दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई के अहकाम दिए गए। जहानिया से देखते हैं अमजद हुसैन बुट्टर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब के विजन और आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में जिला भर में कम्युनिटी पुलिसिंग के फरोग का सफर जारी है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम एसडीपीओ ऑफिस जहानिया पहुंचे तो इन्होंने अवामी शिकायतों मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई, जिसमें एसडीपीओ सर्कल जहानिया गुलाम मुस्तफा गुज्जर, एसएचओ जहानिया जुल्फकार औलख, एसएचओ ठट्टा सातकबा जाकिर गुज्जर, हमाद हुसैन, राय फरत नवाज, तफ्तीशी अफसरान और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डीपीओ ने खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर मुतलका अफसरान को फौरी हल के अहकाम जारी किए। इस मौके पर एक शहरी की तरफ से अच्छी कारकर्दगी की बिना पर डीपीओ खानेवाल को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया और डीपीओ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा देनी थी उनके एफआईआरों के हुक्म सदर किए हैं। उसके अलावा मैंने तमाम मुद्दई भी बुलाए हुए हैं, जितने भी ज़ेर तफ्तीश मुकदमे थाना जानिया में और थाना ठट्टा के हैं, तो अभी मैं तमाम मुद्दइयों को भी सुनूंगा। और उसके अलावा जो यहाँ पे एक अमूमी शिकायत पुलिस की आई है वो नॉन रजिस्ट्रेशन से मैंने इनको सख्त हदायत जारी की और इंशाल्लाह ताला नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की। खुली कचहरी में शहरियों, वकला और सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, टीवी टुडे न्यूज जहानिया। कार्रवाइयां रवामा में 23 डकैतियों को गिरफ्तार करके कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल, मुनशियात और नाजायज असला भी बरामद कर लिया गया। डीएसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सिटी सर्कल में मोटरसाइकिल डकैती और चोरी में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और दीगर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुलजिमान के कब्जे से 16 अदद मोटरसाइकिल, नकदी और भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि दिगर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुलजिमान के कब्जे से 16 अदद मोटरसाइकिल और नकदी और भारी मिकदार में मुनशियात भी बरामद कर ली गई। मुल्क भर की तरह नारोवाल में भी महंगाई बेकाबू। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी की जिंदगी अजीरन बनकर रह गई है। इसी हवाले से जानती हैं नारोवाल से राना शाहद की रिपोर्ट में। हुकूमत की जानब से आवाम को सहूलत के लिए सहूलत बाजार तो लगा दिए गए, लेकिन बदकिस्मती से एशिया खुर्दनोश में कोई काबिल जिक्र कमी नहीं हो सकी जिससे आम आदमी को सहूलत मिल सके। यूटिलिटी स्टोरों में भी कई दिनों से चीनी मौजूद नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पे तकरीबन कोई 18-20 दिन से चीनी नहीं आ रही सप्लाई, लेकिन ये सिर्फ नारोवाल ही नहीं तकरीबन ओवरऑल ही ऑल यानी कि ना स्टोरां दे चीनी नहीं दस्तयाब। एक वक्त था कि जब लोग एशिया खुर्दनी बड़ी तादाद में अपने घरों में ले जाया करते थे, लेकिन आजकल ये बात माजी का हिस्सा बन चुकी है। चंद सालों में महंगाई में इस हद तक इजाफा हो गया है कि अब आवाम बाजार जाते हुए भी घबराते हैं। रोज बरोज की बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम के हौसलों को पस्त कर दिया है, जबकि आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। मुलाजमीन का कहना है कि उनकी तनख्वाहों में इतना इजाफा नहीं होता जिस शिद्दत से एशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। तेजी से बढ़ती हुई महंगाई ने कम आमदनी वाले तबके को दिन में तारे दिखा दिए। एक तरफ कोरोना का खतरा, दूसरी जानब महंगाई का तूफान। अवाम इस हद तक परेशान हो चुके हैं कि मुस्तकबिल करीब में भी हालात संवरते दिखाई नहीं दे रहे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ उधर करोड़ लालीसन में तहसील बार वकला के जेर एहतमाम फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशात पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में वकला समेत सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी भरपूर शिरकत की। मजीद जानते हैं करोड़ लालीसन से गुलाम मुर्तजा की इस रिपोर्ट में। करोड़ लाल ईसन तहसील बार वकला के ज़हर एहतमाम फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के अशात पर एहतजाजी रैली निकाली गई। तहसील बार वकला सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने फ्रांसी वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया पाकिस्तान फौरी तौर पर फ्रांसी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया जाए और मुल्क भर में फ्रांस का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। तहसील बार के सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा का इनकाद करें और इन साजिशों के खिलाफ जो है ना वो इन तक पैगाम पहुँचाए, हुकूमत वक्त तक भी पैगाम पहुँचाएँ कि सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें फ्रांस से और सदर के जो है ना इनकी अशिया के खिलाफ भी जो है ना पाबंदी लगाएँ। फ्रांसी सदर मैक्रोन ने ये उम्मत मुसलमा की गैरत को ललकारा है और इसे पता होना चाहिए कि जब भी कोई झूठा नबी लॉन्च किया गया या यहूद नसारा ने इस तरह ये ले आए तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो तबाह बर्बाद हुआ। ईद शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान से फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा, नारा टीवी।
रिपोर्ट आपने जानी और आगे बढ़ती हैं। आपको बताएं कि करोड़ पक्का पोलियो के खात्मे के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम का सिलसिला चौथे रोज भी जारी है। महकमा हेल्थ की टीमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मुश्ताक झीलन से। जी मुश्ताक, बताइएगा पोलियो मुहिम के बारे में। जी बिल्कुल, दीगर अजला की तरह करोड़ पक्का में भी पोलियो मुहिम का सिलसिला जो है जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ करोड़ पक्का के इलाके दरियाए सतलुज के दरियाई बेट जो है वहाँ पर मौजूद हूँ। वहाँ पर जो है हेल्थ वर्कर की टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। बच्चों को 5 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं उनको वैक्सीन के कतरे पिला रही हैं, जिनकी निगरानी जो है डिप्टी DHO डॉक्टर रशीद अंजम कर रहे हैं। मजीद उनसे बात करते हैं। जी सर, आज के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पोलियो कैंपेन का तीसरा दिन है और आज मैं मस्सा कोटा की दरियाई बेल्ट को चेक करने आया हूँ कि जहाँ पे हमारी जो टीमें हैं रोज़ाना दरिया क्रॉस करके और दूसरी तरफ जाकर बच्चों को कवर करती हैं। गो कि ये थोड़ा सा कठिन मरला है कि डेली बेसिस पे वो दरिया को अबूर करें, लेकिन उनके अज़म जो हैं वो पुख्ता हैं, इरादा नेक है। सिर्फ ये है कि हम वतन अजीज़ को पोलियो से फ्री कर सकें। जी बिल्कुल, डिप्टी DHO डॉक्टर रशीद अंजम की बात आपने सुनी। इनका कहना है कि हमारी टीमें जो है पूरा अज़म है। अपडेट कर रहे थे। उधर झेलम के इलाके काला गोजरा में 18वां इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा भट्ट वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। जी मुस्तफ़ा भट्ट, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ झेलम के नवाई इलाका काला गुजरा में, जहाँ पे सालाना इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये हर साल 30 से 40 जोड़ों की शादियां करवाते हैं। तो इस वाले से ये जानते हैं, हमारे साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र मीर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो तफसील क्या बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 18वां सालाना इज्तिमाई शादी प्रोग्राम है जो आज यहाँ इनका इनकाद पजीर हो रहा है। आपने देखा कि यहाँ खासी तादाद है लोगों की, ख़वातीन और मर्दों की, मगर आप ये भी देखें कि यहाँ से जो बच्चियाँ रुखसत होकर जाती हैं वो किस कदर इज़्ज़त और एहतराम से जाती हैं। यहाँ आज इन बच्चियों को रुखसत करने के लिए ज़िला के जी मुस्तफ़ा भट्ट, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। छाछरू के नवाही गांव में सरकारी स्कूल ना होने के बायस अपनी मदद आपके तहत बनाए गए झोंपड़ी का स्कूल भी आग लगने से जल गया। बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। तफसीलात के मुताबिक छाछरू के नवाही गांव सार नगहार में स्कूल के लिए सरकारी बिल्डिंग तो ना मिल सकी, लेकिन एक निजी इदारे NCHD की तरफ से एक झोंपड़ी में स्कूल चल रहा था जिसमें 50 से 60 बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई काम नहीं करवाया जा सका। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इलाके में स्कूल बनवा कर बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाया जाए। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर तहसील इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल ने बगैर नोटिस दिए सामान समेत दुकानों को मिसमार कर दिया है। मजीद तफसीलात मलिक काशिफ की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सारा लूनी ने शहर में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। फैसलाबाद और सफदराबाद रोड पर वाक़या 30 के करीब दुकानों को मसमार कर दिया गया। तहसील, म्यूनिसिपल कमेटी और रेवेन्यू की टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और तजावजात के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। मुतासरीन का कहना है कि हमें नोटिस दिए बगैर हमारी दुकानों को सामान समेत मसमार कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने इस हवाले से मीडिया को अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। बहुत परेशान है, पहले महंगाई तो परेशान था, हुण साडे कारोबार तबाह कर दिते ने। साडी दुकानां एक दिन भी नोटिस नहीं दिता, एक एडवांस उसे दिन आए ने, उसे दिन ऑपरेशन शुरू करता। साडा सारा सामान विच ज़ाया हो गया, उत्ते ऑपरेशन कर दिता। इन्हां जानबूझ के ढाईए, सानू दस्सिया भी नहीं कि तुसीं समान चुक लो या असीं कुछ कर लिया। आंदे रहे कुछ नहीं, असीं दी कीमत देण नूं तैयार सा। दुकानें मसमार करने पर मुतासरा दुकानदारों ने इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शदीद एहतजाज किया। कैमरा टीम के साथ मलिक काशिफ, टीवी टुडे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर स्मोक की रोकथाम और इसके बायस बनने वाले अवामल पर कड़ी निगाह रखने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक, धान और दीगर फसलात की बाक़ियात और आग लगाने वाले काश्तकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट।
मौजूदा साल हुकूमत पंजाब ने स्मोक को एक कुदरती आफत करार देते हुए इसकी रोकथाम के लिए सूबाई सतह पर एक मिशन तश्कील दिया है। स्मोक माहौलियाती आलूदगी की एक खतरनाक किस्म है जिसे सर्दियों के इब्तदाई महीनों देखा जाता है। हवा में मौजूद गैसें और कीमियाई ज़रात मिलकर स्मोक का रूप धार लेते हैं। स्मोक इंसानी जानवरों और पौधों के अलावा पूरे माहौल को आलूदा कर देता है। काश्तकार धान की बाकियात मसलन पराली और धान के मुड्डों को आग लगाते हैं जिससे उठने वाला धुआं भी स्मोक का बास बनता है। इस सिलसिले में डिप्टी डायरेक्टर ज़री इत्तलात नवीद असमत कालू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत पंजाब ने काश्तकारों को फसल की बाकियात मसलन धान की पराली और मुड्डों को आग लगाने की सूरत में मुतलका अफराद के खिलाफ दफा 144 के तहत कार्रवाई का नफाज किया है। धान की बाकियात को तलफ करने के लिए राइस स्ट्रा चापर या डिस्क हैरो चलाया जाए। महकमा ज़राअत की फील्ड फार्मेशंस को धान के काश्तकारों से मुसलसल राब्ता में रहने और इन्हें धान की बाकियात को जलाने के नुकसानात बारे आगाही फराहम करने का खुसूसी टास्क सौंपा गया है। फ़ज़ाई आलूदगी स्मोक का सबब बनती है। इसके लिए हुकूमत पंजाब ने जरूरी इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर। खबर घोटकी से है कि जिला घोटकी के तमाम इलाकों में दूसरे रोज भी पोलियो के कतरे पिलाने का अमल जारी है। मीरपुर माथेलो समेत जिला भर के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो वायरस से बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिलाने का अमल जारी है। गलियों मोहल्लों में पोलियो की टीमों की जानिब से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। वर्कर्स का कहना है कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में शहरी ताउन करें ताकि हम अपने बच्चों को सेहतमंद बनाकर खतरनाक बीमारी पोलियो वायरस से बचा सकें। कबीरवाला में एसपीओ पंजाब के बाइख्तियार प्रोजेक्ट के ताउन से कबीरवाला में डीपीओ खानेवाल ने म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स कबीरवाला में खुली कचहरी मुनाक़द की। इस मौके पर एएसपी कबीरवाला, एसएचओज, तफ्तीशी अफसरान और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। डीपीओ ने कहा कि पुलिस अफसरान साइलिन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी से पेश आएं और उनके मसाइल खंदा पेशानी से सुनकर फौरी मेरिट पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। बिला वजह शहरियों को थानों के चक्कर न बनाएं। अगर मेरे नोटिस में आया कि पुलिस अफसर या एहलकार ने साइलिन से बदतमीजी की है, उनको इज्जत नफ्स से मजरूह करने की मुर्तकब पाया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यहाँ बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है आवाम को सस्ती और मेयारी इशा खुर्दनोश के फराम करने के हवाले से जो है ऐसा इक़दाम उठाया और यहाँ पे आज कबीरवाला में एक नए यूटिलिटी स्टोर का जो है इफ्तिताह कर दिया गया है। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि कबीरवाला में जो है ये मुल्तान रोड पे यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया है। जोनल मैनेजर जो शहजाद खान साहब उन्होंने किया है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हदायत पे और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी साहब की हदायत पे हम अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। मज़ीद पूरे मुल्क में नए स्टोर्स खोले जा रहे हैं ताकि लोगों को सस्ती अशिया उनके घर के नज़दीक और एक अच्छी एनवायरनमेंट में मुहैया की जाए। इसके अलावा हमने मोबाइल स्टोर्स भी शुरू किए हैं जो मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। मुल्क भर की तरह प्रेस क्लब सिंधेलिया वाली और प्राइवेट यूनियन स्कूल की तरफ से फ्रांस के खिलाफ रैली निकाली गई। इस बारे जानते हैं अपने नुमाइंदे सिंधेलिया वाली सुहेल अब्बास से। जी सुहेल अब्बास, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल सिंधेलिया वाले में मौजूद हूँ। यहाँ जिस तरह पूरे मुल्क की तरह यहाँ भी रैली निकाली गई। फ्रांस में जो खाके बनाए गए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताखी के इस हवाले से हमारे साथ जो है उमर या सब मौजूद है, उनसे जानते हैं उसका क्या कहना है। जी सर, आपने रैली निकाली, क्या मकसद, क्या कहना चाहेंगे आप? बीइंग तहसील सदर ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं तमाम स्कूल्स की तरफ से। इस करारदाद आज हमने करारदाद मजम्मत पेश की है जिसमें हम फ्रांस के सदर ने जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाकों की सूरत में गुस्ताखी की है और ये कुफ़ार अक्सर गुस्ताखियाँ करते रहते हैं, तो हम इस अज़म का इज़हार कर रहे थे कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे, आपकी इज़्ज़त पे मर मिटने को तैयार हैं और हम किसी सूरत में कोई आँच नहीं आने देंगे। ये हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि फूंकों से चिराग बुझाया ना जाएगा और इंशाअल्लाह हम हजूर पाक सल्लम की मोहब्बत के ये परवाने हमेशा आपकी अज़मत, आपकी हुर्मत पे कुर्बान होने को हमेशा तैयार रहेंगे। जी, इस तरह आपने उमर या साहब की बात उनके कहना है, हम सब जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ से यहाँ रैली निकाली गई और सरकारी स्कूल के वो बच्चे भी मौजूद थे। हम बिल्कुल बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि शांगला प्रेस क्लब के ज़ेर इत्माम अलपूरी में कौमी वतन पार्टी के यौम तासीस के हवाले से इजलास मुनक्कद किया गया।
جس کی صدارت ڈاکٹر سجاد احمد نے کی۔ اجلاس میں قومی وطن پارٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں رہنماؤں نے قومی وطن پارٹی کے یوم تاسیس سوات جلسے میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ مقررین کا اپنے خطاب میں کہا، فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ڈی ایس پی صدر سرکل مظفر گڑھ کی طرف سے خان گڑھ تھانہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ادارہ استحقاق اور استحکام شراکتی ترقی افسران نے خصوصی شرکت کی۔ ڈی ایس پی کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری سے لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز پر ملے گا۔ اس موقع پر ایس پی او اور ڈسٹرکٹ آفیسر کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کا مقصد لوگوں کو آگاہی دینا ہے۔ قانون کی روح سے کسی بھی شخص کو آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر پیروسن کے نواحی علاقہ میں ڈریننگ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے گلیوں میں پانی جمع، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ شہریوں کی کئی بار شکایات پر بھی انتظامیہ حرکت میں نہ آ سکی۔ پیروسن شہر میں گندا پانی اور گندگی کے ڈھیر گلیوں میں جمع ہو گئے۔ نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ انتظامیہ کو کئی بار اطلاع کرنے پر بھی صفائی کا عمل نہیں کیا جا سکا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ ورکا مقامی پولیس کی بڑی کارروائی، بین الاضلاعی ڈکیت گینگ 11 ارکان سمیت گرفتار، قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور 1 کروڑ سے زائد کا مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ڈاکو، منشیات فروشی اور ڈکیتی کی درجنوں وارداتوں میں مقامی پولیس کو مطلوب تھا۔ سی پی او گجراوالا کی ہدایت پر ڈی ایس پی چودھری ہاشم محمود گجر نے سب انسپکٹر رانا عادل اقبال کی قیادت میں ٹیم تشکیل دی، جس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے مال بھی برآمد کر لیا۔ چند روز قبل ان کے ساتھی انصر پولیس مقابلے میں اپنے ہی ساتھیوں کو فائرنگ سے ہلاک ہو گیا تھا۔ جلال پور بھٹیا میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سولنگی کھل کی 2 ٹیچرز میں کرونا وائرس کی تصدیق، ٹیچرز کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ محکمہ ہیلتھ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسکول 7 دن کے لیے بند کر دیا۔ متاثرہ ٹیچرز کو گھروں میں قرنطینہ کر دیا گیا۔ ٹیچرز کی کلاس کی 50 طالبات کے بھی سیمپل لیے گئے۔ انتظامیہ کے مطابق 50 طالبات میں سے اگر کسی بھی طالبہ کا ٹیسٹ مثبت آیا تو اسکول کو طویل مدت کے لیے بند کیا جائے گا اور اسکول بھر کی ٹیچرز اور طالبات کے ٹیسٹ کے بعد ہی اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ساہیوال میں غیر رجسٹرڈ کالونیوں کی بھرمار، لینڈ مافیا عوام کو سہانے خواب دکھا کر لوٹنے میں مصروف، متعدد افراد کو عمر بھر کی جمع پونجی سے محروم کر دیا گیا۔ ساہیوال شہر اور گرد و نواح میں غیر رجسٹرڈ کالونیوں کی بھرمار، انتظامیہ خاموش یا لینڈ مافیا زرعی زمینیں خرید کر کالونیاں بنا لوگوں کو مسجد، سکول، پارک، بجلی، سوئی گیس اور سڑکوں کا جال بچھانے کا سہانا خواب دکھا کر فروخت کرتے ہیں، اور جب قسطیں مکمل ہو جاتی ہیں تو دکھائے گئے سبز باغوں میں سے کوئی بھی وعدہ پورا کیے بغیر ہی وہاں سے رفو چکر ہو جاتی ہیں۔ کئی سادہ لوگ عمر بھر کی کمائی ان لینڈ مافیاز کے ہاتھوں لٹا چکے ہیں۔ کنڈری شادی کی تقریب ناقص، چائے پینے سے دھولا سمیت 7 افراد کی حالت بگڑ گئی ہے۔ کنڈری گاؤں نبی بخش میں شادی کی تقریب میں چائے پینے کے سبب دھولا سمیت 7 افراد کی حالت خراب ہو گئی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں نزدیکی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ورثہ کا کہنا تھا کہ چائے کے اندر معلوم نہیں کیا ملا ہوا تھا، اچانک سب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہلانی کے نواحی گاؤں کے رہائشیوں کا زمین پر قبضے کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاج۔ رہائشیوں نے کہا کہ بااثر افراد اسلحے کے زور پر ہماری زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں زمین خالی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور ہم جھوٹے مقدمے بھی کروا رہے ہیں۔ ہم ان کے خوف سے اپنے گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور ہم پر وقت خوف طاری ہوتا رہتا ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ سندھ، ایس ایس پی نوشہر فیروز اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لے کر ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کوٹ ڈی جی کے نواحی گاؤں کے مکین پریس کلب کوٹ ڈی جی کے سامنے پولیس چنگی انچارج کے خلاف سراپا احتجاج۔ شہریوں نے ایس ایس پی خیرپور سے چنگی انچارج کے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں کوٹ ڈی جی سے نمائندہ دوست علی لاشاری۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کوٹ بنگلو شہر میں کوٹ ڈی جی پریس کلب کے باہر جو ہے کوٹ ڈی جی کے نواحی گاؤں بٹڑی اجن کے رہواسی جو ہے وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے پولیس کے خلاف۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اور پولیس نے کس علاقے کی پولیس تھی جنہوں نے ان کے گھر پر ریڈ کیا ہے۔ جی بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کا؟
चौकी इंचार्ज छोडाऊ वड्डा, चौकी इंचार्ज सो कनासरा, इमदाद जागीरानी और रोशन सियाल ने रात को हम घर पे सोए हुए थे गोठ मटड़ी उजन में, रात को 1 बजे आए हैं, ना बताया है ना क्या, ऐसे ही 4 पुलिस मोबाइल लेके आए हैं और हमारे घर में घुस गए, आके सारे घर को तलाश किया है और हमारी लेडीज़ के साथ बदतमीजी की है और हमारे बच्चों के साथ मारा है और मेरे अब्बू को मारा है। हमारा जो सामान है वो वापस करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने इनकी बातचीत सुनी, उनका यही मुतालबा है एसएसपी खैरपुर, डीआईजी सखर, आईजी सिंध से कि इस नाअहल पुलिस एहलकार को हटाकर हमारे साथ इंसाफ किया है, जिसने हमारे घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, मासूम बच्चों और औरतों पर तशद्दुद किया, एक बाइक और एक जो है लाइसेंस याफ्ता हमारी बंदूक लेकर जो है वो वहाँ से चोरों डाकुओं की तरह हमारे घर में घुसे, इनके खिलाफ नोटिस लेकर। बहुत शुक्रिया दोस्त अली लाशारी अपडेट करने के लिए। उधर चिश्तियां थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस की कार्रवाई ताजर के घर होने वाली चोरी की वारदात इंतहाई कलील वक्त में ट्रेस करके नाकाम बना दी गई। मुलजिमान गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और असलिया नाजायज बरामद। चिश्तियां थाना सिटी ए डिवीजन ताजर के घर चोरी की इत्तला मौसूल होने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने SHO की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दी। पुलिस ने टीम ने इंतहाई कलील वक्त में जदीद तरीक़ा तफ्तीश और टेक्नोलॉजी की मदद से नक़बज़नी की वारदात में मुलव्वस 3 मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आवाम को सस्ते और मयारी अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कबीरवाला में एक और नए यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया है, जहां पर आवाम को अशिया खुरनोश से सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर वहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खान शहबाज। जी खान शहबाज, अपडेट कीजिएगा। यहाँ बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है आवाम को सस्ती और मयारी अशिया खुर्दनोश के फराहम करने के हवाले से जो है ऐसा इक़दाम उठाया और यहाँ पे आज कबीरवाला में एक नए यूटिलिटी स्टोर का जो है इफ्तिताह कर दिया गया है। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि कबीरवाला में जो है ये मुल्तान रोड पे यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया है। जोनल मैनेजर जो शहजाद खान साहब उन्होंने किया है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हदायत पे और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी साहब की हदायत पे हम अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। मज़ीद पूरे मुल्क में नए स्टोर्स खोले जा रहे हैं ताकि लोगों को सस्ती अशिया उनके घर के नज़दीक और एक अच्छी इन्वायरमेंट में मुहैया की जाए। इसके अलावा हमने मोबाइल स्टोर्स भी शुरू किए हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे अपना स्टॉक की फराहमी जारी किए हुए हैं। जैसे कि आपने जोनल मैनेजर मुल्तान शहजाद खान साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि आवाम को सस्ती और मयारी अशिया फराहम करने के लिए जो है हमने जो मोबाइल जोन भी बनाए और यहाँ पे जो है इफ्तिताह किया ताकि यहाँ कबीरवाला के जो आवाम है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, और अभी आपको अहम खबर से आगाह करें। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कल एक बयान दिया गया और मामले को मस्क करने की कोशिश की गई। ये कहा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने। आपको बताएं कि पाकिस्तान की फतह को दुनिया ने तस्लीम किया। पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान ने भारत को दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन ने रात की तारीकी में बदहवासी में पहाड़ों पर बम गिराए। पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए भी तैयार है, ये कहना है DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का। थोड़ी देर पहले मीडिया ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह की मदद से हमें दुश्मन पर वाज़े फतह नसीब हुई है। पाकिस्तान ने अमन को मौका देते हुए अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया। अभिनंदन की रिहाई किसी और सूरत हाल से जोड़ना अफसोसनाक है। ऐसा बयान पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़े बनाने की कोशिश है, ये कहना था DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का। मनफी बयानिए के असरात कौमी सलामती पर होते हैं। पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी जहाज भी मार गिराए। कल एक बयान दिया गया और मामले को मस्क करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की फतह को दुनिया ने तस्लीम किया। पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान ने भारत को दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन ने रात की तारीकी में बदहवासी में पहाड़ों पर बम गिराए। पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। अल्लाह की मदद से हमें दुश्मन पर वाज़े फतह नसीब हुई। पाकिस्तान ने अमन को मौका देते हुए अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया। अभिनंदन की रिहाई किसी और सूरत हाल से जोड़ना अफसोसनाक है। ऐसा बयान पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़े
متنازع بنانے کی کوشش ہے، یہ کہنا تھا DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کا۔ انہوں نے کہا کہ منفی بیانیے کے اثرات قومی سلامتی پر ہوتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے 2 جنگی جہاز بھی مار گرائے۔ انہوں نے کہا کہ کل ایک بیان دیا گیا اور معاملے کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ پاکستان کی فتح کو دنیا نے تسلیم کیا۔ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ پاکستان نے بھارت کو دن کی روشنی میں منہ توڑ جواب بھی دیا۔ دشمن نے رات کی تاریکی میں بدحواسی میں پہاڑوں پر بم گرائے۔ پاکستان کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی مدد سے ہمیں دشمن پر واضح فتح نصیب ہوئی۔ پاکستان نے امن کو موقع دیتے ہوئے ابھینندن کو رہا کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ ابھینندن کی رہائی کسی اور صورتحال سے جوڑنا افسوسناک ہے۔ ایسا بیان پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش ہے، یہ کہنا تھا DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کا۔ راولپنڈی میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منفی بیانیے کے اثرات قومی سلامتی پر ہوتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے 2 جنگی جہاز بھی مار گرائے۔ انہوں نے کہا کہ کل ایک بیان دیا گیا اور معاملے کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ پاکستان کی فتح کو دنیا نے تسلیم کیا۔ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ پاکستان نے بھارت کو دن کی روشنی میں منہ توڑ جواب دیا۔ دشمنوں نے رات کی تاریکی میں بدحواسی میں پہاڑوں پر بم گرائے۔ پاکستان کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی مدد سے ہمیں دشمن پر واضح فتح نصیب ہوئی۔ پاکستان نے امن کو موقع دیتے ہوئے ابھینندن کو رہا کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ ابھینندن کی رہائی کسی اور صورتحال سے جوڑنا افسوسناک ہے۔ ایسا بیان پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش ہے، یہ کہنا تھا DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ منفی بیانیے کے اثرات قومی سلامتی پر ہوتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے 2 جنگی جہاز بھی مار گرائے۔ کل ایک بیان دیا گیا اور معاملے کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ پاکستان کی فتح کو دنیا نے تسلیم کیا۔ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ پاکستان نے بھارت کو دن کی روشنی میں منہ توڑ جواب دیا۔ دشمن نے رات کی تاریکی میں بدحواسی میں پہاڑوں پر بم گرائے۔ پاکستان کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی مدد سے ہمیں دشمن پر واضح فتح نصیب ہوئی۔ پاکستان نے امن کو موقع دیتے ہوئے ابھینندن کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھینندن کی رہائی کسی صورتحال سے جوڑنا افسوسناک ہے۔ ایسا بیان پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث، ان سے مزید جانیں گے۔ بریگیڈیئر صاحب بتائیے گا، DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ کل ایک بیان دیا گیا اور معاملے کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، یہ بڑا ہی ضروری تھا DGISPR کا بیان کہ جس طریقے سے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور عوام کے دلوں میں فوج کے خلاف جو ایک دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ کانسیپٹ لوگوں کو کلیئر گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی مسلح افواج نے انڈین اگریشن کا منہ توڑ جواب دیا اور دنیا کو بتایا کہ ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے، جی انہوں نے اپنے خود ہیلی کاپٹر گرایا اور پھر ہم نے ان کا پائلٹ کو کیپچر کر کے اس کو واپس بھی کیا، صرف جنوبی کنوینشن کے رول کے تحت، اور ایک امن کے پیغام دیا، لیکن امن کے پیغام کو غلط مت سکتے۔ نمبر 2، پوری دنیا نے اس بات کو سراہا اور اس کے بعد انڈیا نے ساری اپنی ناکامی کا ملبہ ڈال دیا کہ ہمارے پاس رافیل جہاز نہیں تھے، اس لیے پاکستان نے ہماری کٹ لگا دی اور ہمارے جہاز گرا دی۔ یہ اس سے بڑی اور کیا ناکامی ہوگی؟ ہماری فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے اور دشمن کی فوج آپ کو پتہ کہ انٹرینڈ ہے، انپروفیشنل ہے، اور جس طریقے سے کوشش کی جائے یہ بات بتانے کی، یہ بہت سیریس نیشنل سیکورٹی ایشو ہے۔ اگر کوئی بھی بات اس موقع پہ کہیں ہوتی ہے، یہ کبھی ڈسکلوز نہیں کی جاتی، اور یہ تو بالکل کانٹیکٹ سے ہٹ کے بات کی جائے، جو نہایت افسوسناک ہے، صرف اس لیے کہ ایاز صادق صاحب اپنے نواز شریف جو ملک سے بگاڑے ہوئے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بات کی ہے، بٹ ناٹ اینڈ کمپرومائز نیشنل سیکورٹی ایشو۔ اس لیے یہ بات کی گئی ہے اور بتائی گئی کہ پاکستان میں 5th جنریشن وار کا اٹیک ہے، ہم نے پوری قوم نے ایز اے نیشن ہم نے اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے، جی دشمن کے نعرے کو ناکام بنانا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی فوج مسلح فوج 24 الرٹ ہے، آئندہ کے لیے بھی انڈین اگر کوئی مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کریں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح بیان دینا اور پھر نواز شریف نے جس طرح اداروں کے اوپر اٹیک کیے، اس وقت فوج کا اس طرح کا رد عمل نہیں آیا، اور اب جا کے جب انہوں نے ایاز صادق نے یہ بات کہی تو آج فوج کا بڑا سخت رد عمل آیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس موقع کے اوپر اس طرح ان کو بیان دینے چاہیے؟
بالکل پاکستان کے ڈی جی ایس پی نے بہت اچھا کیا. فوج ہر وقت دھیان نہیں دیتی، لیکن جب سمجھتے ہیں کہ اس کی بہت ضرورت ہے، منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو پھر فوج کو آنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ہر موقع پہ 27 فروری سے لے کے آج لمحہ جب بھی there was a confusion between the armed forces, government of Pakistan and people of Pakistan, تو ڈی جی ایس پی آتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر بتاتے ہیں اور قوم کو آگاہ کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے اور پاکستانی فوج کیا کر رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت ٹائم کے اوپر تھا اور اس سے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ کون مسلح افواج میں ڈویژن کرنا چاہتا ہے، کون مسلح افواج کو ریپوٹیشن خراب کرنا چاہتا ہے اور کون لوگ اینمی کے نیریٹو کو لے کے اس کو آگے. بریگیڈیئر صاحب، نون لیگ کا تو یہ بھی بیانیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فوج کے ساتھ یعنی ادارے کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، کچھ جو عناصر ہیں ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے. تو اس طرح ان کا جب بیان آنا تو میرے خیال میں وہ تحریک انصاف کے اوپر اٹیک کرنا چاہ رہے تھے، کرتے کرتے کیا وہ اداروں کے ساتھ لڑ پڑے؟ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک ان کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا حکومت سے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو حکومت جو لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے جنرل باجوہ کا اور جنرل طاہر کا نام لیا، اشارہ کر کے کہا ہر بات کے اوپر کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. جی اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. یہ ان کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا، اور یہ اب جو انہوں نے بات کی اس کی وجہ سے ڈی جی ایس پر آ کے